Okay, so once again, good afternoon to everyone. So today the first topic of our GATE class is ratio. Uh, Now, before starting, I would like to let you know uh, what is the meaning of ratios. Just a minute. Yes. So first slide is what is ratio. So ratio is a mathematical term which we use to describe how much of one thing there is in comparison to another thing. Now, what do you understand by comparing the comparing the things? So over here, you will have to. So ratio means like I have given the examples 2:1. So we are talking about two different quantities over here. We are comparing one with the other, and that is expressed in terms of ratio. So expressing any comparison between two mathematical terminologies. So the concept is ratios for the same. Now, just a minute. Okay. Now, after that, there are various examples that you can see on the slide. I have mentioned 2:1. Then we can also write it as 2/1. So there are various ways of writing ratio. Now we understood ratio. Now see, suppose we say that अगर हम कोई एग्जांपल लेते हैं कि एक पिज्जा है, पिज्जा को रेशियो फॉर्म में अगर बताना है, यू आर कटिंग इट इनटू 4 हाफ्स और 8 हाफ्स, so you will say 1/4. That means you are cutting one a complete whole pizza into 4 different parts. So इस तरीके से हम लोग ratios को represent करते हैं. Now ये समझने में कंसेप्ट तो आसान है, बट हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चंस ऑन द सेम और गेट में कैसे क्वेश्चंस आते हैं, वी विल बी लर्निंग इट इन द अपकमिंग स्लाइड. फर्स्ट, अभी बेसिक फॉर्मूलेज क्या है रेशियोज में जो यूजुअली पूछे जाते हैं. यू कैन सी ऑन द स्लाइड, इफ 4 क्वांटिटीज आर इन प्रोपोर्शन देन प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स. अब मीन्स और एक्सट्रीम्स क्या होते हैं उसके बेस मीन्स एंड एक्सट्रीम्स के लिए मैंने नीचे यहाँ पर दिया है. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर राइटिंग अ proportion for 4 different quantities A, B, C and D, then you can see here A is to B is C is to D. That means ये दोनों का multiplication, that is B and C's multiplication. Just then take the pointer. Okay, so B and C का multiplication will be equal to the mean of the extremes. So this is the product of the means and this is the product of the extremes. Extremes मतलब बाहर के दो variables या बाहर के दो quantities. So if you want to write 4 quantities in proportion, so initially when I told you about ratio, at that time I mentioned कि ratio में you will be working with 2 different quantities, you are comparing 2 different quantities, but here I am saying that I want to compare 4 quantities. So 4 quantities को proportion में कैसे लिखेंगे? So this is the way. You write BC is equal to AD. That means you are getting the product of the extremes, that is AD, and that's equal to product of means BC. ठीक है? Now ये हो गया theoretical part. Now let's understand कि इसमें questions कैसे solve करते हैं. Okay? Next slide. Yeah. So here is the first question. And students, I would request ki, you should write this down in your notebook. I hope you people are doing that so that you can refer this later as well. Okay. So please continue writing the questions, and at the end, I'll surely give you time to ask me some doubts. So by then, you just listen to me patiently. Now the question is, if A is to B is equal to 2 is to 3. Now this question, just see carefully. Now the question says A is to B is equal to 2 is to 3. You can see over here. So दूसरा क्या है, B is to C. So देखो मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, पहले हमें क्या दिया है, it's given. Okay, I'll tell you. देखो A is to B is to C is to D. ठीक है, ये चारों मैंने पहले नीचे लिख लिए.
नाउ द क्वेश्चन सेज A is to B is 2 is to 3. दो क्वांटिटीज, पहले दो क्वांटिटीज का रेशियो कितना है? 2 is to 3 है. नाउ सेकंड एंड थर्ड क्वांटिटी इफ कंपेयर तो उनका रेशियो है 4 is to 5. दिस इज सेकंड एंड थर्ड क्वांटिटी. Now if I am comparing third and fourth quantity that is C is to D, then the ratio is 6 is to 7. अभी ऐसे तीन अलग अलग ratios अगर दिए हैं, so how are we going to find the combined ratio that is asked over here, that's A is to B is to C is to D. तो चारों का proportion, that means इसके पहले की स्लाइड में जो हमने यहाँ पर पढ़ा था कि if four quantities are in proportion, तो this is the usual formula of doing it, that is BC is equals to AD. But if we are having separate ratios, मतलब individually दो दो क्वांटिटीज के बीच में जब रेशियो दिया है, जैसे यहाँ पर ए बी का दिया है, बी सी का दिया है एंड सी डी का दिया है, अब इन तीनों को कंबाइन कैसे करेंगे? तो दिस इज द मेथड. नाउ यू कैन सी हियर व्हाट आई हैव रिटन. फॉरगेट अबाउट द ऑप्शंस, ठीक है, हम लोग सॉल्विंग पार्ट समझते हैं कि कैसे करते हैं. Here it's given A is to B is to C is to D. पहले ऐसे ये चारों जो क्वांटिटीज दिए हैं इंडिविजुअली, ठीक है, सेम सेम नहीं लिखना है. जैसे यहाँ पर B यहाँ पर भी आया, यहाँ पर भी B आया है. So this B and this B, you are going to only write it one time. Okay, यहाँ पर मैंने एक ही बार लिखा है B. Now यहाँ पर C है, this is C and again C is coming in the third ratio, but still I have written only one C over here. तो ऐसे ही चारों डिफरेंट क्वांटिटीज को बस एक साथ प्रोपोर्शन में लिख लेना है नीचे. A is to B is to C is to D. अब इसके बाद नीचे हम क्या करेंगे? A is to B का रेशियो कितना दिया है? 2 is to 3. ठीक है, तो मैंने यहाँ पर लिख लिया 2 is to 3. अभी ये दो यहाँ पर जितने भी डिजिट्स आपको रेड में दिख रहे हैं ना, उनको फिलहाल के लिए इग्नोर करो. तो पहले A is to B का रेशियो मैंने लिख लिया 2 is to 3. These two places are blank. For example, just assume these two places are blank. Now second ratio is B is to C क्या दिया है? 4 is to 5. तो बराबर B के नीचे 4 आएगा और C के नीचे 5. And the extreme positions, मतलब A और D की पोजीशन वैकेंट है. ठीक है, C is to D दिया है 6 is to 7. तो C और D के नीचे आ गया 6 और 7. Initial two places A and B are vacant. These two places we need to assume it's vacant. Now I will tell you कि मैंने यहाँ पर 3, यहाँ पर 4 और यहाँ पर 5 ये कैसे लिखे हैं. So this is a simple technique of solving this question, students. ये क्वेश्चन गेट में आता है usually. It comes in the math section. तो इसको जल्दी से सॉल्व करने के लिए ये सबसे आसान तरीका है. इफ यू आर राइटिंग A is to B, अगर 2 is to 3 लिख रहे हो, एंडिंग में B की पोजीशन पे कौन सा नंबर है? 3. तो B के राइट हैंड साइड पे जितनी भी प्लेसेस वैकेंट होंगी उस पे भी सेम नंबर आएगा, दैट इज 3. तो अगर यहाँ पर B के जगह पर अगर 3 है तो 3 के जगह अगर 5 या 7 जो भी कुछ होता तो मैं C और D में भी 5 या 7 लिखती. बट यहाँ पर क्या दिया है? 3. तो C एंड D में भी 3 ही आएगा ना. सिमिलरली यू कैन सी हियर ऑल्सो. B is to C क्या दिया था? 4 is to 5. 4 के लेफ्ट हैंड साइड की ब्लैंक स्पेस थी 4, यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड पे 4 के, तो आई मेंशन 4 ओनली, क्योंकि यहाँ पर 4 है तो लेफ्ट हैंड साइड पे भी 4 ही लिखोगे. यहाँ पर 5 है तो 5 के राइट साइड में प्लेस ब्लैंक थी तो वहां पर 5 ही आएगा. मतलब जो नंबर ऑलरेडी दिया है उसके राइट में अगर प्लेस वैकेंट है तो वहां पर वही नंबर आएगा. अभी जैसे ये प्लेस के लेफ्ट हैंड साइड पे प्लेस वैकेंट थी तो मैंने वहां पर 4 ही लिखा. सिमिलरली यहाँ पर 6 is to 7 दिया है C is to D का रेशियो, मतलब C के लेफ्ट हैंड साइड में A और B दोनों ब्लैंक थे, बट C के पास कौन सा नंबर है? 6, इसलिए A और B को भी हम 6 ही लिखेंगे. ओके, तो दिस इज जस्ट अ ट्रिक. ओके, इसमें कोई लॉजिक नहीं है कि यहाँ पर 6 ही क्यों लिखा है, ऐसा कुछ एक्सप्लेनेशन या ऐसा कुछ नहीं है, बट दिस इज जस्ट अ सिंपल वे ऑफ सॉल्विंग दिस. उसके बाद हमको क्या करना है? इनका मल्टीप्लीकेशन करना है. ओके, वी आर गोइंग टू मल्टीप्लाई them. तो जैसे 2 into 4 is 8, 8 6 are 48, इसलिए यहाँ पर 48 आया है. is to 3 4 are 12, 12 6 are 72, इसलिए यहाँ पर 72 लिखा है. 3 5 are 15 और 15 6 are 90, so 90 is here. 3 5 are 15 and 15 7 are 105, इसलिए this is the answer. okay, but as you can see options में कैसे है, सारे ratios जो आप देख रहे हो 16 से स्टार्ट हो रहे हैं. A B C सारे 16 से स्टार्ट हो रहे हैं, सिर्फ D में 18 से स्टार्ट हो रहा है. इसका मतलब कोई भी ऑप्शन हमारा 48 से स्टार्ट नहीं हो रहा है. दैट मीन्स वी हैव टू रिड्यूस दिस रेशियो. ओके,
So to reduce this ratio, we have to see the common factor between all these four terms. 48, 72, 90 और 108 के बीच में कोई तो कॉमन फैक्टर होना चाहिए जिससे हम इसको रिड्यूस कर सके. Now we'll analyze which is the common factor. So we can see that 3 is the common factor because I understand that 16 3s are 48. ठीक है, मुझे एक समझ में आ गया कि 16 3s are 48. Okay, see. Okay, so first नंबर जो मेरा आया था यहाँ पर वो मेरा सेटिस्फाई हो रहा है. अगर ये 16, अगर मैं 48 को 3 से डिवाइड करूँ तो मुझे 16 मिल रहा है. दैट मीन्स ए, बी और सी में से कोई ऑप्शन हो सकता है. बट लेट्स चेक कि बाकी के 3 बचे हुए रेशियोज को भी हम 3 से डिवाइड करके ये आंसर ला पाते हैं कि नहीं. अगर 72 को 3 से डिवाइड करूँ तो 24 आएगा. सो इफ आई टॉक इन एन इनवर्स फैशन तो 24 3s are 72 हो गया. ठीक है, वैसे ही 90 को अगर 3 से डिवाइड करूँ तो 30 मिल रहा है. ओके, 105 को अगर 3 से डिवाइड करो तो 35 मिल रहा है. दैट मीन्स 16 is to 24 is to 30 is to 35 is the reduced ratio of the found answer. ये हमने भी फाइंड किया था. इसमें से अगर we divide this entire thing by 3, that is I am taking the common factor in consideration, so I can see that I get this answer. That means which is my right answer? C is the right answer. Okay, now so ये क्वेश्चन आसान था, बट इसको सॉल्व करने के लिए बस इतनी छोटी सी ट्रिक ध्यान में रखनी है कि अगर यहाँ पर 3 नंबर है तो राइट हैंड साइड पे भी विल गेट 3 ओनली. जो भी नंबर है उसके आजू बाजू में वही नंबर रखना है. ठीक है, नाउ सी दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन. आई होप स्टूडेंट्स यू पीपल आर राइटिंग. ओके, प्लीज नोट्स बनाओ इस सबके. और जो मैं शॉर्ट ट्रिक्स बता रही हूँ उसको भी राइट हैंड साइड पे एक आपके लैंग्वेज में जो इजी लगे आपको वैसे लिख के रखिए. Now the second question is a bit different. It says two numbers are in the ratio 1:2. आपको दो number we are considering, that's 1:2. So we'll go one by one. Okay, now see what I have done over here. I'm considering two numbers x and 2x. You can consider it as x and y also. I felt x and 2x is easy for me to understand, so मैंने x और 2x लिए हैं दो numbers. अब ये दो number है 1:2 के ratio में. Now they are saying if 7 is added to both their ratio, to both, the ratio changes to 3:5. मतलब initially जो numbers हमारे x और 2x है, they were like this. Okay, ये दो numbers थे. क्या बोला है यहाँ पर? initially two numbers are in the ratio of 1:2. मतलब ये दोनों numbers का ratio कितना है? 1:2 है initially. Okay. Sorry for my bad handwriting, okay, but I hope you people are understanding. Okay, so पहले दो numbers क्या है? x और 2, x and 2x. These two are in the ratio of 1:2. So this is what I understand from the first sentence. तो हमेशा वर्ड प्रॉब्लम्स में ये चीज ध्यान में रखो कि हर एक सेंटेंस से आप एक इक्वेशन बना सकते हो. तो पहले ये सेंटेंस से मुझे ये समझ में आ रहा है कि मुझे ये इक्वेशन मिल रहा है. Now what I'm doing, I'll just rub this line. ओके, तो पहले लाइन से मुझे समझ में आ गया कि x और 2x 1:2 के रेशियो में है. नाउ द सेकंड सेंटेंस सेज इफ 7 इज एडेड टू बोथ. अगर ये दोनों में अगर 7 ऐड कर दे, मतलब इफ आई डू दिस +7 in the numerator here and as well as in the denominator, if I do this, then the ratio will change to, then this 1:2 will change to 3:5. This is what they want to say. So sorry. Okay, so अगर 7 ऐड कर दे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में तो ये रेशियो 1:2 से चेंज किसमें हो रहा है? 3:5 में. एंड दैट इज व्हाट आई हैव रिटन ओवर हियर. सी दिस लाइन. नाउ x + 7 is to 2x + 7. और हाँ, रेशियोज लिखने के लिए आप एक तो ऐसे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के फैशन में भी लिख सकते हो, या फिर यू कैन पुट अ कोलन इन बिटवीन एंड यू कैन डिनोट द रेशियोज. ओके, सो मैंने यहाँ पर देखो कैसे लिखा है. x + 7 is to 2x + 7 will be 3:5 because the question says like that. So इसको मैंने फ्रैक्शन फॉर्म में भी लिखा है. नाउ यू पीपल मस्ट बी नोइंग कि अगर लेफ्ट हैंड साइड में एक फ्रैक्शन क्वांटिटी है एंड राइट हैंड साइड पे एक फ्रैक्शन क्वांटिटी है, तो हाउ टू फाइंड द अननोन टर्म,
हाउ आर यू गोइंग टू फाइंड द अननोन वेरिएबल? सो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन. आई होप यू पीपल नो दिस. 5 को मल्टीप्लाई करेंगे x प्लस 7 के साथ, 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 2x प्लस 7 के साथ. ओके, सो दिस विल बिकम, so I'll tell you orally, students. I'll try to write over here as well, and then you can solve this. It's very easy. X plus 7. Okay. You can try with me. Okay. खुद solve करने का try करो and then you can check the solution over here. ठीक है. So पहला क्या हुआ? 5 को multiply करूंगी मैं x plus 7 के साथ, equal to, there is a equal to sign in between, so equal to हम भी डालेंगे 3 into 2x plus 7. Just a simple cross multiplication. ठीक है. 3 into, it will be 2x plus 7. Okay, this is what is cross multiplication. Now what are you going to do? You are going to multiply this 5 with the entire bracket. So 5x plus 7 is equal to 3 into 2x, 6x plus 21. x terms एक साथ लेंगे हम लोग. So x वेरिएबल को एक साथ ले लेंगे and then right hand side पे you keep the constants. So something like this will come. जैसे 2x like 5x, यहाँ पर है 6x, तो 5x अगर इधर जाता है तो x हो जाएगा, 35 minus 21 हो जाएगा, and similarly you'll get the answer. So x will come as 14. Try to solve this equation, students. It's very simple. यहाँ से आप कर सकते हो. x is 14. x 14 आने के बाद सेकेंड 2 नंबर्स कौन से थे मेरे, x और 2x. मुझे ये दोनों नंबर फाइंड करने बोला है क्या? नहीं. आई हैव टू ओनली फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर. सो हाउ एम आई गोइंग टू फाइंड दिस ग्रेटेस्ट नंबर? ऑब्वियसली मुझे पता है कि x नंबर छोटा होने वाला है 2x से, तो अगर x 14 आता है तो 2x कितना आएगा? 28. सो दिस 28 बिकम्स माय ग्रेटेस्ट नंबर. सो दिस इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन. अंडरस्टूड? सिंपल ट्रिक इतनी ही है. वर्ड प्रॉब्लम पढ़ते समय एक बार उसको पूरा रीड करो, देन अंडरस्टैंड सेंटेंस बाय सेंटेंस. फर्स्ट सेंटेंस समझ के एक इक्वेशन बनाओ, देन गो फॉर द नेक्स्ट सेंटेंस एंड अकॉर्डिंगली मेक द चेंजेस. जैसे मुझे यहाँ पर रेशियो चेंज हुआ बताया, एंड लाइकवाइज. ओके, now next question. Third question says rupees 1210 were divided among A, B and C so that A is to B is equal to 5 is to 4 and B is to C is equal to 9 is to 10. Then how much will C get? मतलब 1210 ये रुपीस मैंने 3 लोगों में बांट दिए, A, B और C. मैंने बांटे हैं उसके बेसिस पे उन्होंने रेशियोज में दिया है. जैसे A is to B, मतलब A और B को कौन से रेशियो में गए हैं पैसे? 5 is to 4. B और C को गए हैं 9 is to 10 के रेशियो में. बट दिया हुआ क्वेश्चन रेशियो में है, तो हाउ टू कन्वर्ट दिस रेशियो इन टर्म्स ऑफ रुपीस, और कैसे समझेंगे कि एग्जैक्टली C को कितने पैसे गए होंगे? सो फॉर दैट रेशियो, ये कंसेप्ट वहां पर आता है. सो अगेन विल डू द सेम थिंग. मैंने बताया था अगर सेम रेशियोज के बारे में अगर दिया है, जैसे यहाँ पर A is to B दिया है, फिर सेम B का रेशियो C के साथ अलग दिया है, इफ दिस इज गिवन सेपरेटली, फिर कंबाइन करके पहले तीनों क्वांटिटीज को लिख लो. जैसे if you must have observed in the previous question, in this question 4 quantities were given over here, so मैंने 4 quantities को क्लब करके पहले लिखा. Similarly, here only 3 quantities are given, A, B and C. So I'll club them and write it A is to B is to C. उसके नीचे पहले A is to B में क्या दिया है? 5 is to 4. तो ब्लैक में मैंने लिख दिया. जो रेड में लिखा है that's my blank space. अब यहाँ पर 4 था इसलिए राइट हैंड साइड पे भी 4 आ गया. इफ आई होप यू पीपल रिमेम्बर, मैंने जो फर्स्ट क्वेश्चन में बताया था. ठीक है, सेम चीज कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर. अब B is to C कितना दिया है? 9 is to 10. तो 9 दिया है, 9 के लेफ्ट साइड में ब्लैंक स्पेस थी, तो यहाँ पर जो नंबर होगा बीच में वही नंबर आएगा लेफ्ट ब्लैंक स्पेस पे. सो यहाँ पर 4 था तो राइट हैंड साइड में 4 आया. फिर B is to C में B में 9 था, A की जगह खाली थी, मतलब B के पहले की जगह भरनी थी, इसलिए B का नंबर ही सेम A की जगह पर आएगा. एंड देन वी मल्टीप्लाई दिस टू. 5 9s are 45, 9 4 9s are 36 and 4 10s are 40. Likewise, this is the answer. Now ये आंसर तो आ गया, बट इज दिस माय फाइनल आंसर?
नो, बिकॉज मुझे अंडरस्टैंड करना है कि सी को कितने मिले, पैसे कितने मिले. आई वांट टू अंडरस्टैंड इन टर्म्स ऑफ मनी. सो हाउ एम आई गोइंग टू अंडरस्टैंड दैट? सी को कितना दिया है यहाँ पर? दे हैव गिवन इट 40. सो व्हाट आर यू गोइंग टू डू नाउ? You will add these three, that will be equal to, see what you are going to do, 45 will 45x प्लस, सी ये तीनों रेशियो में है, ठीक है? तो ये तीन रेशियो में है, किस में से ऑब्टेन हुए? हमें 1:1:0 में से ऑब्टेन हुए. मतलब 1:1:0 ये तीनों में ये रेशियो में बटे होंगे. अभी जब तीनों को ऐड करती हूँ, अगर मैं बोलती हूँ कि मैंने ए को 10 रुपए दिए, बी को 10 रुपए दिए और सी को भी 10 रुपए दिए, तो आई अंडरस्टैंड कि मैंने तीनों को 1:1:1 के रेशियो में 30 रुपीज को डिवाइड करके दिया, ठीक है? बट यहाँ पर 45:36:40 के रेशियो में आई एम डिवाइडिंग 1210 amongst 3 people. So to analyze how much individual is getting, I'll have to put x here. So how am I going to put x? Yeah, I'll write it down again. तो रेशियो को अगर सिंपल टर्म्स में लिखना है तो उनके साथ में एक वेरिएबल हमेशा जाएगा. सो इफ आई एम टॉकिंग अबाउट दिस 45, सो आई कांट राइट इंडिविजुअल 45, आई हैव टू राइट 45x प्लस सेकेंड टर्म 36 है, तो 36 में भी x लगेगा. सो एवरी टाइम अ वेरिएबल विल कम in between, and same variable आएगा because we are divided the same quantity, and the third number is 40, so I'll get 40x. okay, ये तीनों में हमने कौन से डिवाइड, किस चीज को डिवाइड किया था? वी हैव डिवाइडेड 1210 amongst these three. so ये आ गया क्वांटिटी राइट हैंड साइड पे. नाउ जस्ट गो ऑन एडिंग these three numbers. After adding these three numbers, whatever the value will come, so let's add it. 36 plus 40, 76. 76 plus 45 will come as 121. Yes, 121x is equal to 1210. So अभी x कितना आ रहा है मेरा? 10. And now I have to find कि c को कितना मिला. So how to find this c? Now x, a को कितना मिला, इसका मतलब 45x लिया था मैंने, this was for a. That means A को मिले है 450 रुपीज, B को मिले है 360 रुपीज, एंड C को मिला होगा 400 रुपीज, एंड दैट्स द रीजन B is the correct answer, that is rupees 400. Okay, I hope this question is clear to everyone. So this you can just write it down, students, और अगर लिखना नहीं हो रहा है fast, so you can at least take screenshot of the same. Fine. So let's move on to the next question. अभी थोड़ा सा क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे. इट्स वेरी सिंपल. सी, इन अ बैग ऑफ 20 स्वीट्स, 20 स्वीट्स है एक बैग में, देर आर 8 ब्लू स्वीट्स. तो बैग में 20 स्वीट्स है, उसमें से 8 कितने हैं? ब्लू. ठीक है, 8 ब्लू है, 12 पिंक है. व्हाट इज द रेशियो ऑफ ब्लू टू पिंक स्वीट्स? नाउ एक बैग में 20 स्वीट्स है, उसमें से 8 अगर ब्लू है, 12 अगर पिंक है, तो रेशियो वी अंडरस्टैंड. इट्स सिंपल टू अंडरस्टैंड कि 8:12 हो जाएगा रेशियो. यस, आई होप ये स्टेप समझ में आ गई होगी. अगर टोटल बैग में 20 है, 8 अगर ब्लू है, 12 अगर पिंक है, so the ratio will be 8:12. Now what we have to do is, see, I have written it over here. Remember, all ratios should be simplified where possible. Simplified इसलिए बोला है क्योंकि 8:12 के रेशियो को हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं. You must have learned this. हम लोग 8 10 मतलब 7 8 9 में सब सीखे कि हम यूजुअली फ्रैक्शंस को रेड्यूस फॉर्म में लिख के यूज करते हैं. अब 8:12 को we can reduce it. There is a common factor between them, that is 4. So हम will divide 8 by 4. The answer will be 2. We will divide 12 by 4. The answer will be 3. Now 2:3 is the reduced fraction. We usually use fractions in the reduced form. ठीक है? So final answer is 2:3. ये मैंने explanation इतना लिखा है इसीलिए, otherwise the question is very simple. Or the purpose of putting this question was to just check if people are able to understand ratio and are able to reduce them into the simplest form. ठीक है? Just you can take the screenshot or you can write it down quickly in your notebook.
जैसे भी आपको इजी लगे. Okay, so next question. Now, there is a question, how should the scale factor of 3 centimeter is to 15 meter be expressed as a simplified ratio? अभी क्या करना है? This is the same question as the previous one. ठीक है, पहले वाला जो क्वेश्चन किया था वैसे ही सिमिलर क्वेश्चन है, जस्ट टर्मिनोलॉजी चेंज किया है क्वेश्चन का और थोड़ा सा क्वेश्चन को ट्विस्ट किया है. बट वी हैव लर्न दिस, हम लोग बचपन से देखते हैं कि क्वांटिटीज हमेशा सेम रेशियो में होती है. लाइक यहाँ पर दिया है, they are asking you how you can express 3 centimeter is to 15 meter in the simplified ratio. So you have to give a simplified ratio to this. पहले तो simplified ratio देने के लिए ये दोनों quantities एक ही यूनिट में होने चाहिए. देयर SI यूनिट वी कैन से, और उनका यूनिट एक ही होना चाहिए. one parameter is in centimeter, you can see over here, this is centimeter and this is in meter. So ऐसे दो different quantities का या दो different units का रेशियो हम नहीं ले सकते. So what are we going to do is, पहले एक तो 3 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा या फिर 15 मीटर को सेंटीमीटर में करना पड़ेगा. एनी वे दैट यू फील इजी, कोई भी तरीका यूज करोगे तो भी आंसर आपका बराबर आ जाएगा. ठीक है, सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज सी. Firstly, we need to ensure that the units we are using are the same because whole numbers are preferred. It is easier to present their scale factor as centimeters. Now, if I convert both of them into centimeters, then will it be easy for me? या फिर दोनों का अगर मीटर में कन्वर्ट कर दूं तो इजी होगा. So whichever way you feel is easy for you. For me, I understand कि 1 meter is equal to 100 centimeter. So ये मुझे समझने में ज्यादा आसान जाता है, तो I'll try to convert 15 meter into centimeter. So see, we have studied this. 1 meter is equal to 100 centimeter and that's the reason मैंने रेशियो क्या चेंज कर दिया, it became 3:1500 because 3 centimeter is to 15 meter will be equal to 1500 centimeter. Now we can see 3:1500, इन दोनों में highest common factor कौन सा है? 3, and that's the reason both these numbers will be divided by 3 and so the simplified ratio would be 3. दोनों में कॉमन रेशियो क्या है? हाईएस्ट फैक्टर कौन सा मिला है मुझे? 3. तो व्हाट आई विल डू, आई विल डिवाइड दिस 2 by 3 और उससे मुझे रेड्यूस फॉर्म मिल जाएगा. तो ये हाईएस्ट फैक्टर फाइंड करना इज नथिंग बट कन्वर्टिंग द गिवन रेशियो इनटू अ सिंप्लीफाइड रेशियो. ओके, so 3 will become 1, see here 1, or 1500 divided by 3 will become 500 and the simplified answer is 1:500. Okay, इट वॉज इजी क्वेश्चन. बट जब ये छोटी छोटी चीजें जब बड़े क्वेश्चन में आती है तो यू शुड रिमेम्बर कि कन्वर्जन करना है बिकॉज डिफरेंट यूनिट्स को हम सॉल्व नहीं कर सकते. यू हैव टू कन्वर्ट बोथ ऑफ देम इनटू सेम यूनिट. ओके, सिमिलरली अगर आपको क्वेश्चन किलोमीटर मीटर का आता है या लीटर मिलीलीटर का आता है तो यू हैव टू कन्वर्ट देम इनटू अ सेम क्वांटिटी फर्स्ट. एक तो मिलीलीटर लीटर दिया है तो उन दोनों को लीटर में ले लो या मिलीलीटर में ले लो एंड यू सॉल्व इट. ओके, डिफरेंट क्वांटिटीज रख के डिफरेंट SI यूनिट्स लेके यू कांट फाइंड द सिंप्लीफाइड रेशियो. ऑलवेज रिमेंबर दिस. फाइन. नाउ see, this is the 6th question. Yeah, the purpose of putting this question was 10:2.5. अभी एक नंबर हमारा होल नंबर है and second one is a decimal number. Now to easily work with this kind of ratios, whole numbers are necessary. So ratios अगर find करना है, if you want to work upon ratios या fractions जब हम कभी करते हैं तो decimal numbers थोड़े difficult जाते हैं. So how to convert these decimal numbers into a whole number? So the easiest way is to multiply both the sides by the same number and in this case अगर 2.5 को whole number में convert करना हो तो nearest कौन सा होगा? 2. So in this case they are saying that 2 makes sense. Why I have written this? क्योंकि अगर 2.5 को मैं 2 से multiply कर दूं then the number will become 5 and 10 into 2 will become 20. So now these two are the whole numbers and so the whole number ratio will be 20:5. ठीक है. Now again you can see here 20:5. ये दोनों reduced form में है क्या? नहीं. So I can get the reduced form out of this. Yes. अभी इस दोनों में से highest common factor कौन सा होगा? HCF is 5. So
20 को 5 से डिवाइड करूंगी तो 4 आ जाएगा, 5 को डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा. सो द करेक्ट आंसर इज 4:1. ओके, दिस इज माय करेक्ट आंसर. यू कैन जस्ट राइट दिस डाउन क्विकली स्टूडेंट्स. जो डेसिमल नंबर दिया होता है उसको होल नंबर में कन्वर्ट करो, क्योंकि जो एक्चुअली होल नंबर दिया है, जैसे यहाँ पर 10 दिया है, मैं 10 में कितना भी नंबर मल्टीप्लाई करूँ फिर भी मुझे रेशियो फाइंड करने में आसानी जाएगी. बट अगर ये 2.5 अगर ये यहाँ पर होल नंबर में कन्वर्ट नहीं होता, सो दिस वुड हैव बिकम अ डिफिकल्टी फॉर मी. ओके, so follow this practice. I hope you people are making notes of this. Just write down the question and you can try solving it on your own again. Okay, now moving on to the seventh question. So in this class, students, I have just tried key ratios के जो छोटे-छोटे so we can say concepts जो है, basics जो है वो आपकी clear हो जाए, ताकि you will be able to solve bigger questions on your own. Now इसीलिए previous questions में I see even in the first question I tried to explain कि पहले तो basic formula में I tried to explain कि 4 quantities को proportion में कैसे लिखते हैं. Then how if there are 4 quantities, suppose first and second का ratio दिया है, second and third का दिया है, फिर third और fourth का दिया है, तो फिर चारों का एक साथ रेशियो कैसे निकालेंगे, that we understood. Then we also understood कि अगर दो नंबर्स का रेशियो दिया है, फिर अगर वो दो नंबर्स में कुछ चेंज होता है तो रेशियो कैसे चेंज होता है, and then how to find the smallest or the greatest number, that is what we understood in next question. So similarly, I have tried to give you a glimpse of different types of concepts that are possible in under ratios. Uske andar hi, this is very simple, but I just want to understand. This question is very simple. Now the question says, for every one boy in the class, there are 3 girls. What is the ratio of girls to boys? This is very easy, but usually जब हम solve करते हैं तो दिया जाता है 1 boy in the class and there are 3 girls. So we usually say it's 1:3. Okay, we usually say that the answer would be 1:3, but we never pay attention to the question that has been asked. It says that what is the ratio of girls to boys? Ratio of boys to girls का पूछा है क्या? It's not B to D's to G. 1 minute. So the purpose of taking this question was to make you people aware कि options देख के या फिर what is been asked to find as a whole is very important. So now if B to G पूछा है तो this answer would be correct, but now it's wrong because the question says what is the ratio of girls to boys. So this ratio इसको उल्टा करके लिखना है, ठीक है. 1:3 नहीं आएगा आंसर में, but 3:1 will be the answer क्योंकि गर्ल्स का रेशियो पहले पूछा है. So you can even twist the ratios. That's what I want to tell you from this question. Okay, आप ratios को twist भी कर सकते हो. Now see, there's a next question, a bit difficult. Peter and Paul are roommates. Each of them pays the rent according to their room size. Peter's room is twice as big as Paul's. How much rent does Peter pay if the total rent is 1200 whatever euros or whatever you can take it? Now see, it says Peter and Paul दो roommates है, ठीक है. The condition says कि दोनों पे कैसे करते हैं रेंट, अपने रूम साइज के हिसाब से. तो the question says this is very important. Peter's room is twice as big as Paul's room. मतलब पॉल की रूम अगर मतलब लेट्स कंसीडर कि पॉल की रूम अगर 1 मीटर की होगी तो पीटर की रूम कितनी होगी 2 मीटर. दैट्स ट्वाइस, डबल. जो भी क्वांटिटी होंगी पॉल की उसका डबल है पीटर का रूम, मतलब पीटर का रूम बड़ा है. सो व्हाट आई एम कंसीडरिंग ओवर हियर, द रेशियो ऑफ पीटर्स रूम साइज टू पॉल्स रूम साइज. रेशियो किसका लेना है अभी, पीटर और पॉल का. सो आई विल टेक इट Peter's room. So I'll take PE for Peter, or so sorry. So
पीटर इज टू पॉल, ठीक है, पॉल का कीप इट पी ओनली. व्हाट इज द रेशियो? पीटर्स रूम इज ट्वाइस, ट्वाइस बोला है ना, इज ट्वाइस, इज मतलब इक्वल टू, ट्वाइस तो यहाँ पर टू, एज बिग एज पॉल्स रूम. सो अगर पीटर की ट्वाइस है मतलब पॉल की कितनी होगी? वन. So the ratio over here is 2:1. You can see here also. Now Peter pays twice as much as Paul. So we can represent this situation as 2x plus x equal to 1200. Now I have told you before also कि जब रेशियो को इक्वेशन के फॉर्म में लिखना हो तो रेशियो को एक वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई करके ही हम प्रेजेंट कर सकते हैं. So what I have done here, Peter का 2 है, so when I am writing this in the equation form, what will happen? This will become as 2x, because the question here says कि total rent जो दोनों मिलके भर रहे, that's 1200. So 2x plus x is equal to 1200. That is written below also. Okay. So इन दोनों का addition, that is then 3x is equal to 1200. That means x is equal to 1200 by 3, and that gives me 400 as the answer. So see, Peter is to Paul का पहले रेशियो ले लिया जैसे क्वेश्चन में दिया था. It came 2:1. Then I did 2x plus x, that is 1200. 3x equal to 1200. So x will be equal to 400. See, you can see over here also. It's written below. So this means that Paul pays 400 rupees and Peter pays 800. Okay, double, twice as, twice मतलब 4, जितना Paul भरेगा उसको multiply by 2, that will be paid by Peter. Okay, now just this question is very important. इसमें अभी जैसे हमने a:b 5:4 या होल नंबर्स दिए थे, यहाँ पर फ्रैक्शंस भी हो सकते हैं. सो आई एम जस्ट टेलिंग यू व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज ऑफ द क्वेश्चंस. 5:4 की जगह पर होल नंबर्स ना देते हुए दे कैन गिव यू फ्रैक्शन ऑल्सो, या डेसिमल दे सकते हैं. अगर डेसिमल देते हैं तो आई टोल्ड यू कि हाउ टू सॉल्व डेसिमल रेशियोज, उसको ऐसे फाइंड करना है. फिर अगर डिफरेंट क्वांटिटीज देते हैं तो अभी जैसे we have solved this question. In this question we saw कि b is to c और a is to b, ये होल नंबर्स दिए थे. अभी इनमें अगर हमको क्वांटिटी दे दी होती मीटर और सेंटीमीटर में, किलोमीटर और मीटर में, ऐसे कुछ अगर क्वांटिटीज दी होती तो वी वुड हैव, हमको ये ऐसे चेंज करना पड़ता. ओके, सो दिस कैन कम इन रेशियोज और दिस कैन कम इन रेशियोज. डेसिमल्स आ सकते हैं, डिफरेंट यूनिट्स आ सकते हैं. तो इसलिए मैंने ये दो डिफरेंट क्वेश्चन में डाला था. बस इसमें सिंपल चीज ये ध्यान में रखना है कि जब रेशियो को, ये जो रेशियो आता है इसको जब आप ये करते हो, दैट मीन्स व्हेन यू टेक दिस रेशियो एंड वांट टू फाइंड कि इंडिविजुअल को कितना मिला है एज अ होल, तो उस समय उसको एक वेरिएबल जरूर लगे, एक्स लो वाई लो एनीथिंग यू कैन टेक. सो एज 45:30:40, इसको सिंपल में लिखना था तो आई गॉट 45x plus 36x plus 40x which is equal to 1210. और फिर मैंने x की वैल्यू फाइंड की और फिर x को मैंने इसमें पुट किया. x की वैल्यू अगर मैं इसमें पुट करूंगी तो a हो जाएगा 450, b 360, c 400. ठीक है, इस तरीके से था. तो अभी जितने क्वेश्चंस किए हैं उतने तो भी आपको क्लियर होने चाहिए एंड यू शुड बी एबल टू सॉल्व सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चंस देन ऑन योर ओन. अभी यहाँ पर जैसे दिस वाज सिंपल. ओके, रेशियो निकालना था, बट जस्ट ध्यान में रखना कि ऑप्शन में ये नहीं दिया रहेगा. ऑप्शन में हमेशा रिड्यूस्ड वाला होगा मोस्ट ऑफ द टाइम. सो चेक फॉर दैट आंसर. नेक्स्ट, अगर सेंटीमीटर मीटर में ऐसा कुछ दिया है सो ऑलवेज कन्वर्ट इट. ओके, ऑलवेज कन्वर्ट द क्वांटिटी इनटू सेम यूनिट एंड देन सॉल्व. ये भी
तो पहले जो डेसिमल नंबर होता है उस पर ध्यान देना है। ये होल नंबर को यू कैन टेक इट आफ्टरवर्ड्स, बट जो डेसिमल नंबर है फर्स्ट कंसिडर दैट नंबर 2.5 है। तो 2.5 को पहले होल नंबर में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, थिंक अबाउट दैट। तो मैंने जैसे यहाँ पर 2.5 को पहले 2 से मल्टीप्लाई करके आई हैव मेड इट अ होल नंबर और फिर मैंने रेशियो लिया। सो ऐसे जो छोटे छोटे क्वेश्चन है ये आपको बड़े क्वेश्चन में हेल्प होगी। एंड दिस आल्सो जस्ट पे अटेंशन टू व्हाट इज द रेशियो दे हैव आस्क्ड। पहले सिचुएशन जो देते हैं, पहले जो कंडीशन बताते हैं उसमें दे विल टेल यू फर्स्ट बॉय एंड देन दे आर मेंशनिंग गर्ल्स, बट व्हाट इज द क्वेश्चन अल्टीमेटली दैट दे आर आस्किंग, जस्ट चेक दैट एंड देन गिव द ऑप्शन। सी यू कैन सी यहाँ पर ऑप्शन ए भी था, आई माइट हैव गॉट कंफ्यूज्ड और मैंने ए ऑप्शन टिक कर दिया होता, सो the answer must have went wrong, so इसलिए you have to pay attention, okay। फिर यहाँ पर और सिचुएशन जो दी है, जैसे पीटर्स रूम इज ट्वाइस एज बिग एज पॉल्स रूम, तो after understanding the condition, framing that into a mathematical form and writing the ratio or writing the equation should be practiced, okay। तो आना चाहिए। now I'll tell you this question. Now the ninth question says an amount of rupees 735 was divided between A, B and C. Okay, हमने जो 1210 का क्वेश्चन किया था, this one ऐसा ही but थोड़ा change. So the question here says 735 rupees मैंने तीन लोगों में divide किए, A, B and C में. If each of them had received rupees 25 less, अगर 735 को मैं डिवाइड तो कर रही हूँ तीन लोगों में, बट अगर हर एक को 25 रुपीज कम मिले होते, देन देयर शेयर्स वुड हैव बीन इन द रेशियो ऑफ 1:3:2। ओके, मींस व्हाट इज आवर एस्टिमेशन कि 735 सबको देने हैं, बट 735 को जब तीन लोगों में डिवाइड किया तब हर एक को, मतलब ए, बी और सी तीनों को भी 25 रुपीज कम आए। दैट मीन्स इन टोटल तीनों को जो कम आए पैसे 25 into 3, that is, see what we are saying, if each of them receives rupees 25 less, then the total amount will be distributed is 660। टोटल हम दे कितने रहे थे, 735 रुपीज दे रहे थे, पर उसमें से डिलीवर कितने हुए, सिर्फ 660 रुपीज तीनों में। दैट मीन्स कि दैट मीन्स तीनों के 75 रुपीज, तीनों के मिलाकर 25 का अगर मिला के 75 जो हो रहा है, सो वी कैन से कि 735 माइनस 735 इज द प्रिंसिपल अमाउंट दैट वी वर ट्राइंग टू गिव एवरीवन, ठीक है। बट इसमें से 25 लेस क्या है सबको, दैट मीन्स 25 into 3, तीनों के अगर मैं एक साथ कर दूं तो 25 into 3 दैट इज 75। so 735 minus 75 will give me 660 rupees। ओके, सी 660 रुपीज, इसीलिए मैंने यहाँ पर ऐसे लिखा है, द टोटल अमाउंट दैट विल डिक्रीज टू 660 रुपीज। दिस इज द एक्सप्लेनेशन टू दैट। नाउ व्हाट दे आर आस्किंग, 25 रुपीज अगर लेस जाते हैं, सो दे आर सेइंग कि अभी उनका रेशियो क्या होगा, 1:3:2 का रेशियो होगा। एंड the money received by C was, they are asking us about individual, C को अकेले को कितने पैसे मिले होंगे। so what we are going to do, C's original share is equal to C's new share plus rupees 25, मतलब 1:3:2। see now A, B and C, ठीक है। रेशियो क्या है, 1:3:2 which is equal to 1:2, 3:2। yes, so this is what, this is equal to 660, ठीक है। 25 रुपीज कम मिले हैं, so I'll consider 660 as the total। ये था उनका रेशियो। नाउ सिर्फ सी के बारे में पूछा है तो we'll only consider C over here।
अब जब सी के बारे में पूछा है तो ये टोटल रेशियो कितना होगा, मैंने आपको बताया था कि रेशियो को अगर सिंपल इक्वेशन में लिखना है सो ऑलवेज अ वेरिएबल विल कम इन प्लेस, तो ए विल बिकम एज एक्स, ए ए यहाँ पर क्या बन जाएगा एक्स, ओके, एक्स प्लस 3 will become 3x plus 2 will become as, okay Siddhant, I'll repeat this question. See, the question says an amount of rupees 735 was divided, ठीक है, 735 rupees हमको तीन लोगों में डिवाइड करने हैं, ए बी और सी में, ठीक है। अभी क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ ईच ऑफ दैम, मतलब ए बी और सी अकेले अकेले की बात हो रही है, हैड रिसीव्ड रुपीज 25 लेस, मतलब हर एक को अगर 25 रुपीज कम मिले तो उनका रेशियो, उनका नया रेशियो क्या बताया है, 1:3:2, ठीक है। 25 हर एक को कम मिल रहे हैं, कितने लोगों में बांट रहे हैं, तीन लोगों में बांट रहे हैं, तो 25 अगर हर एक का मैं अगर ऐड करूं दैट मीन्स इन टोटल 75 रुपीज कम जा रहे हैं। So 335 minus 75 will give me 660, sorry. तो इसीलिए 1:3:2 is equal to 660। अब इसको इक्वेशन फॉर्म में हम लिखेंगे और हम यहाँ पर x की वैल्यू फाइंड करेंगे ताकि हमें इंडिविजुअल को कितना मिला ये समझ में आएगा। So x plus 3x plus 2x is equal to 660 and now 6x हो जाएगा इनका टोटल, 6x equal to 660, ओके, 660 हो गए, तो x कितना आएगा 110, ठीक है, यू कैन सी, ओके। तो एक तो आप ऐसे फाइंड कर सकते हो या फिर जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है 2 डिवाइडेड बाय 6, मतलब हमें पूछा किसका है, सिर्फ c का पूछा है, तो वी कैन नेग्लेक्ट दीज ऑल्सो, a एंड b को नेग्लेक्ट करके आई कैन जस्ट कंसिडर c का रेशियो कितना होगा, c आई कैन टेक इट एज 2, ठीक है, 2 है, आउट ऑफ टोटल कितना है 1 + 3 4 + 2 6, आउट ऑफ 6 2 का शेयर कितना है 2, इनटू आई कैन डू इट 660, तो ये जो मैंने नीचे लिखा है इनटू 660 कर देंगे हम, तो इससे मुझे इंडिविजुअल सी का पता चलेगा। वैसे ही अगर मुझे ए का पूछा होता तो ए के लिए मैं क्या लिखती, 1/6, यहाँ होता 1/6 इंटू 660, बी का पूछा होता तो 3/6 इंटू 660, अब सी के बारे में पूछा तो आई जस्ट कंसिडर सी, 2/6 इंटू 660, ये हो गया। इससे अब मैं राइट साइड का मिटाती हूँ, आई जस्ट इरेज दिस, ओके 1 मिनट, यस, अभी देखो ये हो गया 2/6 इंटू 660, ये कितना आएगा, इफ आई गो ऑन डूइंग दिस 220 आएगा मेरा आंसर, मतलब सी को 220 मिले, ठीक है, बट सी द मनी रिसीव बाय सी वॉज, मतलब हमें फाइंड क्या करना है, सी हियर, सी का ओरिजिनल शेयर उसको कितना मिलना था, 25 कम गए, पर अगर नहीं जाते तो ओरिजिनली उसको कितना मिलना था, मतलब 220 प्लस 25 रुपीज जो उसको कम गए थे, दैट मीन्स इन टोटल ही शुड हैव रिसीव्ड 245 रुपीज। Oh, is it clear now, Siddhant? Okay, so end में उसको 245 जाने चाहिए थे। Okay, so Siddhant got the question. Now, तो C का ओरिजिनल शेयर हम निकालेंगे, दैट इज 220 प्लस 25 जो ओरिजिनल जाना था, इसलिए मैंने जो कम पैसे उसको मिले होंगे वो भी ऐड करके आई गॉट दी ओरिजिनल शेयर ऑफ हिम, सो आंसर इज डी, ₹245। ओके, सो दैट्स इट। अभी okay, now I'll open it for you students. Anyone has any doubts till here? जितने questions पढ़ाए उतने समझ में आए? Yes or no? Maybe you can unmute yourself or you can just write it down in the chat box.
Yes, is this clear till here? I have tried to clear small doubts. Okay, Pralay says okay. Kanchan, others? अब ये बेसिक्स के भरोसे, ये कंसेप्ट के भरोसे स्टूडेंट्स ट्राई टू सॉल्व डिफरेंट क्वेश्चंस आल्सो, ठीक है। ये ऐसे डिवीजन वाले क्वेश्चंस, ये ऐसे मनी को डिवाइड करके किसको कितना शेयर आएगा, फिर 25 रुपीज कम, ऐसे अलग अलग क्वेश्चन आ सकते हैं। अभी यहाँ पर तो उन्होंने एज अ होल तीनों को 25 लेस बोल दिया था, बट इन सम क्वेश्चन दे लास्ट कि ए को अगर 25 कम है, बी को 20 ज्यादा मिल गए, तो फिर सी को कितने होंगे। तो ऐसे भी डिफरेंट सिचुएशंस कैन बी आस्क्ड। सो दिस वाज जस्ट अ एग्जांपल, ओके। अब ये क्वेश्चन को मोल्ड करके और भी 2-3 क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो will you be able to solve these questions then now? Yes, anyone has any questions, कुछ भी doubt हो तो you can ask. ठीक है, so as we are remaining with last 5 minutes, I would like to cover this question also. This question says gold is 19 times as heavy as water and copper is 9 times as heavy as water. So just pay attention, okay. पहले क्या बोला है, gold. गोल्ड का कंपैरिजन किसके साथ किया है, दिस इज कोलन, ओके। गोल्ड इज एज हेवी एज वाटर, तो गोल्ड को वाटर के साथ कंपेयर किया है। एंड देन दे आर सेइंग कॉपर इज 9 टाइम्स एज हेवी एज वाटर, देन द सेकंड रेशियो दैट वी कम। अभी तक हम लोग ए बी और सी वेरिएबल्स के साथ करते थे, नाउ दे हैव स्टार्टेड यूजिंग सम क्वांटिटीज, जैसे यहाँ पर गोल्ड, कॉपर और वाटर यूज किया है। तो इनिशियली दे आर सेइंग कि गोल्ड इज 19 टाइम्स, मतलब गोल्ड इज 19 टाइम्स एज हेवी एज वाटर, 1, and copper is 9 times, that means 9 is to 1, 9 times as heavy as water. In what ratio should these be mixed to get an alloy? Gold और copper को मिलाकर अगर कुछ बनता है, that's called as alloy. When you are mixing two different quantities and you're getting a third one, that's called as alloy. So in what ratio these two should be multiplied or mixed to get an alloy 15 times as heavy as water? मतलब इन दोनों को मिलाकर एक अलॉय बनना चाहिए जिसका कंपैरिजन वाटर के साथ हो रहा है, तो उसका रेशियो क्या मिल रहा है हमें, 15:1, 15:1, दिस शुड बी द रेशियो. सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज गोल्ड इज टू कॉपर, विल राइट इट डाउन, ठीक है। यहाँ पर वाटर कॉमन पैरामीटर है, इसलिए वाटर हम नहीं लेंगे क्योंकि गोल्ड और कॉपर को मिला के हमको अलॉय बनाना है, ठीक है। सो वाटर नहीं आएगा. So gold and copper I have written it down at the top. गोल्ड कितने इसमें मिक्स हो रहा है, 19, कॉपर इज 9, उनमें से बनना क्या है, अलॉय. सो अलॉय को बीच में लिखना है, इन बिटवीन, एंड अलॉय शुड बी 15. सो नाउ सी व्हाट, दिस इज अ सिंपल ट्रिक, ओके। अभी यहाँ क्या करेंगे, 19 माइनस 15 4, तो यहाँ में सब्ट्रैक्शन हो गया, 19 माइनस 15 बिकेम 4, 15 माइनस 6, यहाँ पर डोंट टेक इनटू कंसिडरेशन देयर साइंस. अगर मैं यहाँ बोल रही हूँ 9 माइनस 15 तो 6 आएगा, माइनस 6 नहीं, बिकॉज नेगेटिव वी कांट टेक, हमको प्रोपोर्शन निकालना है, ठीक है। सो 19 माइनस 15 विल गेट 4 और 9 माइनस 15 विल गेट 6. तो रेशियो क्या आ गया है, 6:4. बट अगेन द सेम थिंग, 6:4 कैन बी reduced. दिस इज नॉट reduced फॉर्म. सो इन दोनों को अगर 2 से मैं डिवाइड कर दूं, सो व्हाट आई गेट दिस एट द एंड, आई गेट 3:2. ओके, so that's it. Understood this question? Any doubts in this question? So here instead of giving A is to B is in this ratio, B is to C is in this ratio, उन्होंने यहाँ पर चेंज कर दिया. They took gold, water, गोल्ड और वाटर का रेशियो दिया, फिर कॉपर और वाटर का रेशियो दिया, और इनको मिक्स करने के बाद जो अलॉय बनेगा उसका वाटर के साथ का रेशियो दिया. तो दे आर आस्किंग अस कि गोल्ड और कॉपर कितने रेशियो में मिक्स होना चाहिए. दैट मीन्स दिस आंसर स्टेट्स की गोल्ड एंड कॉपर शुड बी मिक्सड इन द रेशियो ऑफ 3:2. मतलब गोल्ड अगर 3x ले रहे हैं, या फिर वी कैन से 3, गोल्ड जो है वो 3 टाइम्स में होना चाहिए एंड कॉपर शुड बी 2 टाइम्स accordingly, and then you will get this alloy. Is it clear? Anyone has any doubts?
Okay, so Pralay says it's clear. I hope others also must have understood this question. Uh, Fine, so that's it from my side then. यहाँ पर ratio का topic complete करती हूँ, and now there'll be class taken by Ms. Atiksha Sharma, so she'll continue with verbal ability topic right now.